السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور فتح ہمیشہ مسلمانوں کو ملتی ہے اور جیت ہمیشہ توحید کی ہوتی ہے، اور خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدر رکھا ہے۔ صرف اتنی ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں اور حالات سے گھبرائیں نہ، صبر سے آگے بڑھیں۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کتنا بڑا مرضی کافر ہو، کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ جتنی مرضی طاقتیں، قوتیں، ٹیکنالوجی لوگ لے آئیں، اللہ کے لشکروں کے سامنے سب کچھ بے بس ہے، سب کچھ بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مدد ہے۔ اور فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، فیصلہ کن چیزیں زمین پہ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہے۔ جب نوائے وقت کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا الملک للہ والحکم للہ، لوگ مذاق کرتے تھے۔ امریکہ کے مقابلے میں لکھا جاتا ہے کہ حکم بھی اللہ کا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، افغان باقی، کوہسار باقی۔ اگر اب یہ افغانی باقی رہیں گے، یہ پہاڑ بھی باقی رہیں گے، فتح بھی باقی رہے گی۔ لوگ مذاق کرتے تھے، امریکہ کے حکموں کے سامنے کس کا حکم چلے گا؟ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ ناقابل شکست ہے۔ لوگ اس کو سپر پاور کہتے تھے، وہ سب سے بڑی قوت ہے۔ اور ہم کہتے تھے، اذان میں کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ انگریزی میں اس کو سپر پاور کہتے ہو، قوتیں اللہ کی ہیں، ان کی نہیں ہے۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فتح کا فیصلہ کرے گا، یہ سب بکھر جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے، یہ سب ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے وعدوں کا انتظار کرو۔ اللہ کے بندوں نے انتظار کیا، کام کیا۔ ایک وقت تھا مسلمانوں میں مایوسی تھی اور کفر خوش تھا، اور آج مسلمان اتنے خوش ہیں کہ وہ خوشی سنبھالی نہیں جاتی، اور کفر پہ اتنی مایوسی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، کسی کا سامنا نہیں کر سکتے، کیا بتائیں کس سے مار کھا کے آئیں۔ چودھری گاؤں کا کسی کمزور سے مار کھا کے یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے مارا ہے، اور پھر اتنا مارے
कि उसको शिकस्ती दे दें? कुछ नहीं था मुकाबला, एक तरफ सारी दुनिया थी, एक तरफ कुछ भी नहीं था। कोई फौज फौज से नहीं लड़ी, कोई मुल्क मुल्क से नहीं लड़ा, कोई हुकूमत हुकूमत से नहीं लड़ी, कोई जहाज जहाज से नहीं लड़ा, कोई टैंक टैंक से नहीं लड़ा, किसी मिसाइल के मुकाबले में मिसाइल नहीं था। एक तरफ सब कुछ था, एक तरफ कुछ भी नहीं था। मगर जिधर कुछ नहीं था वहां अल्लाह की मदद थी, वहां अल्लाह के वादे थे, वहां अल्लाह का फैसला था। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया फिर उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे? आले इमरान है। ओहद वालों को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, मेरी मदद के साथ सब कुछ होगा, मेरी मदद आएगी फिर शिकस्त नहीं आएगी। अगर मैंने मदद ना की फिर तुम बचोगे नहीं। फतह तुम्हें मिलेगी मेरी मदद के साथ, मेरे फैसले के साथ, मैं करूंगा। आज लोग मुल्ला उमर के इंटरव्यूज पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका उससे पूछ रहा था कि तुम अमेरिका से छुप लोगे? अमेरिका का ऐलान है तुम जहां छुपोगे वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो पहाड़ों गारों से तुम्हें तलाश करेंगे। वो कहने लगा मुझे अमेरिका का नहीं पता, मुझे अल्लाह के वादों का पता है। अल्लाह ताला का हुक्म है मेरे रास्ते में लड़ो, फतह मैं दूंगा। उसने कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका का सहाफी उससे पूछता है कि ये चंद अरबी दे दो, तुम्हारा मुल्क भी बच जाएगा, तुम्हारी हुकूमत भी बच जाएगी। कहता है मैं अल्लाह के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मैं कल को ये नहीं कि लोगों की गालियां नहीं सुन सकता कि इसने इस्लाम की इज्जत को दांव पे लगा दिया था, इसने इस्लाम को रुसवा कर दिया था। अल्लाह के बंदों पे मुश्किल वक्त आई थी, ये भाग गए थे। ये इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, ये इस्लाम के ज़ाब्तों के खिलाफ है। अगर मुजरिम है इनके ऊपर अदालतों में मुकदमे चलाओ, अगर इनका जुर्म होगा हम तुम्हारा साथ देंगे, हम बिला वजह किसी को किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे। उसने कहा फिर अमेरिका का ऐलान है कि जंग करेंगे। वो कहने लगा अल्लाह का ऐलान है मेरी जमीन बड़ी वसी है, हिजरत कर जाओ। अमेरिका का ऐलान है वॉर ऑन टेरर, वॉर फॉर एंटी टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होगी। वो तुम्हें खत्म कर देंगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, वो तुम्हारी कौमों को खत्म कर देंगे। उसने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह ताला फतह देगा। तुम अमेरिका की कुव्वतों से डराते हो, ये इससे भी दुगने हो जाएं, फतह अल्लाह ताला हमें देगा। ये अकेला अमेरिका नहीं, इससे डबल कुव्वतें भी आएंगी, फतह हमारे मुकद्दर होगा। आज वो कब्र में जा चुका मगर आज उसके लफ्ज मौजूद है। बंदे फौत हो जाते हैं, किरदार जिंदा रहते हैं। बंदे दुनिया से चले जाते हैं, उनकी गैरत जिंदा रहती है, उनकी हमीयत जिंदा रहती है, उनके ईमान जिंदा रहते हैं। उसने कहा हम हिजरत करेंगे, हम जिहाद करेंगे, मैं यह हुकूमत छोड़ दूंगा। हुकूमत क्या थी? चटाई पे बैठा था, चटाई पे बैठा था, मिट्टी के प्याले के अंदर पानी पीता था। दुनिया के हुक्मरान, काबुल में एक जहाज उतरता था, एक चढ़ता था, एक उतरता था, एक चढ़ता था, उसको मनाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये जंग शुरू मत करो, ये जंग तुम जीत नहीं सकते। अमेरिका के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? तुम्हारे पल्ले क्या, तुम्हारे पास क्या है? तुम निहत्ते हो, तुम बेबस हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी हैसियत कोई नहीं इनके मुकाबले में। इनके पास असलहा बहुत है, इनके पास फौजें बड़ी हैं, ये दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है, तुम तन्हा हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और वो कह रहे थे कोई हमारा साथ नहीं देगा, मेरा अल्लाह हमारे साथ है।
कोई हमारे साथ नहीं। अल्लाह कहता है यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो फिर तुम्हें शिकस्त कौन दे। मैं यखजुलकुम, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया बता फिर कौन है। वो कुरान पढ़ते रहे, कहने लगा मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों की इज्जत दांव पे लगे, इन अमरीकियों ने मुसलमानों को यरगमाल बना लिया। और आज भी ये लफ्ज खत्म नहीं हुए, आज भी लोग ये पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कहता इन अमरीकियों ने यरगमाल बना लिया, हम मुसलमानों को आजादी के सफर के ऊपर लेके आएंगे। उसने कहा तुम्हें अपनी कौम की फिक्र नहीं है, ये तुम्हारी कौम को कुचल देंगे, मार देंगे, तुम्हारी कौम खत्म हो जाएगी, तुम अपनी कौम से बेफिक्र हो। तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम्हारी औरतों का क्या बनेगा, तुम्हारे खानदानों का क्या बनेगा, तुम्हें अपनी कौम की फिक्र नहीं। कहने लगा कौम के लिए बड़ा फिक्रमंद हूं, मगर मकसद इससे बड़ा है। किसी को बात समझ आई उसने क्या कहा? वो उसे डरा रहा है कि तुम्हें अपनी कौम की फिक्र नहीं, अमेरिका से जंग लड़ोगे तेरी कौम मर जाएगी। कहता हां मुझे मालूम है मैं कौम के लिए बड़ा फिक्रमंद हूं, मगर इस कौम से बड़ा मकसद है, वो इस्लाम है। हम कौम कुर्बानी देंगे, इस्लाम को जिंदा करेंगे। हम कट जाएंगे। और मुसलमानों कमजोर लोग हैं जो आज कहते हैं डॉलरों की वजह से जीत हो गई, इस वजह से इनको ये मिल गया, ये खजाने मिल गए। ये तो पांव की ठोकर पे थे, ये तो पैसे, आज लोग कहते हैं इनको इतने डॉलर मिल गए। बामियान के बुत ना तोड़ने के ऊपर दुनिया इनको खजाने देती थी। जो गजनवी के साथ हुआ था कि इन बुतों के बराबर सोना ले लो, इन बुतों को मत तोड़ो, तो लफ्ज वही थे, हम बुत शिकन हैं, बुत फरोश नहीं है। तारीख में कोई ये ना कहे हमारे बेचारे साथे अगर बुत ना तोड़ते, अगर अमेरिका से ना लड़ते, अगर सुलह कर लेते, मिन्नत कर लेते, वक्त गुजार लेते, 4-6 बंदे ही देने थे, दे देते, मुल्क बच जाता। मगर उसने कहा हम मुल्क नहीं बचाएंगे, हम इस्लाम बचाएंगे। मसला इस वक्त मुल्क का नहीं है, मुल्ला उमर का एक जुमला था, इस्लाम की इज्जत दांव पे लगी है। सवाल हमारा नहीं है, सवाल मुसलमानों की गैरत का है। कहता तुम कहते हो कि मेरा मसला, मेरा नहीं है, इस्लामी गैरत का मसला है, इस्लामी हमीयत का मसला है, हमारे ईमान का मसला है, हमारी जानों का मसला नहीं है, हमारे ईमानों का मसला है। इस्लाम की इज्जत दांव पे लग गई है। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ ऐलान कर दिया है, वो इस्लाम को दहशतगर्दी कह रहे हैं, वो सलीबी जंगों का आगाज कर रहे हैं। या अल्लाह तू वो वक्त ला कि बुश आके कहे कि हां मैंने सलीबी जंगों का आगाज किया था, हम हार गए। वैसे तो दुनिया कहती हम हार गए। वो कह रहा था वी आर गोइंग टू क्रोसीड, हम सलीबी जंगों के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के दौरे उसने किए थे। मेरे सामने आज एक लिस्ट है, मंजर है, मेरी आंखों के सामने चल रहा है। 9/11, उसके बाद बुश की तकरीर, हम अमेरिका की सालमियत के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, हम इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ठीक उसके बाद वो तकरीर कर रहा था, फिर पाकिस्तान को फोन आया था, हमारा साथ दोगे, हमारे दुश्मनों का साथ दोगे, अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। किधर है वो आज? कॉलन पाउल, जैक्स्ट्रा, रम्सफील्ड, रिचर्ड आर्मिटेज, लोगों को तो ये नाम भी भूल गए। मगर वो पगड़ियों वाले, वो दाढ़ियों वाले, मैं लोगों से कहता हूं, हमने कैसरो किसरा के महलों की फतूहात पढ़ी थी कि सहाबा इकराम दाखिल किस तरह हुए। वो सोने चांदी के महल थे, वो तख्त थे, और सहाबा इकराम घोड़ों समेत उनके ऊपर चढ़ गए थे, उनके तख्तों के ऊपर। कादिसिया की फतह थी, ईरान की फतह थी, और सहाबी ने किसरा
उसके खूंटे के साथ जाके अपना खच्चर बांध दिया था, उनके कालीनों के ऊपर मट्टी के साथ चल रहे थे। वो आदाब बादशाही से वाकिफ नहीं थे। लोग कहते थे बादशाहों से मिलने के आदाब नहीं, कहते जब से अल्लाह से डरना शुरू किया फिर किसी से नहीं डरते, जब से अल्लाह को मानना शुरू किया फिर किसी को नहीं मानते, जब से अल्लाह के सामने झुके हैं इसके बाद किसी और के सामने नहीं झुके। तुम सजदे करते हो इन कैसर और किसरा को, तुम इन महलों की गुलामी करते हो, हमने ये गुलामियां अपने कदमों के तले रौंद दी हैं, ये हमारे जूते की नोक पे हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। फिर कैसर और किसरा फतह हुए, फिर सोने चांदी के ढेर सहाबा के कदमों में लगे। हमने वो मंजर पढ़े मगर वो हमारी आंखों ने, हमारे रब ने हमारे सामने दिखाए। महल वैसे ही हैं और प्लास्टिक के जूते पहने फटे कपड़ों वाले किस तरह उसमें दाखिल होते हैं। दुनिया की कोई चीज उनके पास नहीं। उस तरह ही महल है, खाली सन्नाटे, सोने चांदी की कुर्सियां, बर्तन, दुनिया के तायुश के सामान। ये दुनिया में जन्नतें बनाते रहे, वो आखिरत की जन्नतों वाले टूटे स्लीपर पहने हुए, प्लास्टिक के जूते, फटे कपड़े, और उन महलों में दाखिल हो रहे हैं। और महल में दाखिल होके कहते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। कोई जमीन पे खड़ा है वही सजदे में गिर रहा है कि काबुल गिर गया। हमने बड़ी दफा काबुल का फाल सुना मगर हमेशा यह सुना कि मुसलमान गिरे हैं। हमने अपनी आंखों में देखा कि कुफर गिरा है। रूस था, लोग मानते नहीं थे, कहते थे रूस की शिकस्त है, फातेह अमेरिका है। और फतह उस वक्त भी शहादत हुई थी, लोगों को समझ नहीं आई थी। रूस की शिकस्त को कहते थे ये अमेरिका की फतह है। अल्लाह कहता है पीछे हट जाओ, किसी अमेरिका की फतह नहीं होगी, हम अमेरिका को भी शिकस्त देंगे, यही कब्रिस्तान बनाएंगे। इन सारी साम्राज्य कुव्वतों का, इन सारी सुपर पावर्स का, ये सारे मेरे खिलाफ लड़ने वालों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान में बनेगा। वो ऐलान करते हैं, कहते हैं मना हमारे पास तुम्हारी खोपड़ियां पड़ी हैं अमानत के तौर पे। 102 साल पहले भी हम जीते थे, 20 साल पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीते थे। बरतानिया के कब्रिस्तान अलग है, रूसियों के कब्रिस्तान अलग है। अमरीकियों तुम्हारे तो ताबूत ही नहीं आए थे, तुम्हें तो दफन करने वाला कोई नहीं था। ये सारे मंजर हमारे सामने, जो जहां खड़ा है वही सजदे में गिरा है। मंजर है मक्का की फतह का, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कोई फायरिंग नहीं है, कोई आतिशबाजी नहीं है। ओ हमारे तो एक मोहल्ले का काउंसलर जीत जाए ना, उसे समझ नहीं आती मैंने करना क्या है। सड़कों पे सजदों में पड़े, मैदानों में सजदे में पड़े, जो जहां वहीं सजदे में गिरा। अमीर का हुक्म आ गया, किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना, किसी के घर में दाखिल नहीं होना, किसी को गोली का थप्पड़ नहीं मारना। जो सामान जहां पड़ा है उसको उसकी जगह से नहीं हिलाना, किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, किसी की दुकान का दरवाजा नहीं खोलना। इसे कहते हैं अमीर, इसे कहते हैं अतात। वो हुकूमत नहीं जीती, एक जमात जीती है। हमारे लोग जी न्यूट्रल जिंदगी गुजारता हूं, मैं कौन सा जमात के साथ हूं। ये न्यूट्रल कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ये न्यूट्रल कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। जी मैं ना आपके साथ हूं ना उनके साथ हूं। आज पाकिस्तान के करोड़ों लोग खुशी नहीं मना सकते, उनके दिल खुश नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ ही नहीं थे। जो अमेरिका के साथ थे वो रो रहे हैं, जो जिहाद के साथ थे वो हंस रहे थे। और न्यूट्रल का क्या बने? ना इनको रोना आ रहा है ना इनको हंसी आ रही, ये बेबसी की तस्वीर बने हैं ये न्यूट्रल। और आज ही फैसला कर लो न्यूट्रल बनने के किसी जगह लगना है या अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जब कॉलिन पॉल ने कहा फैसला करो हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ हो, अल्लाह का एक बंदा मर्द मुजाहिद
और जो आज भी अमेरिका की शिकस्त की वजह से और उनको जो चोटें लगी हैं, जो कश्मीर का वारिस है, जो मुजाहिदों का अमीर है, आज भी असीरी की जिंदगी बर्दाश्त कर रहा है। इस माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा था जब कोई अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था, जब कोई जिहाद का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, इस माल रोड पे आवाज आती थी अमेरिका आज तेरा फैसला है कि मेरे साथ हो या मेरे दुश्मनों के साथ हो, हमें यह जिंदगी मुस्तकिल नहीं मिली, हमने मर के अल्लाह के पास जाना है। कल क़यामत का मंजर होगा, मेरा रब पूछेगा मेरे साथ हो कि मेरे दुश्मनों के साथ हो। अमेरिका हम तेरी सफ में नहीं खड़े होना चाहते, हम अल्लाह के बंदों के साथ खड़ा होना चाहते। ये न्यूट्रल नहीं थे, इन्होंने फैसला कर दिया था। वो कोई बंदा, हम जैसे जिहाद की बातें करते, लोग हमें समझाते थे और ना भाई ना, वैसे कोई और काम कर लो, कोई कारोबार शुरू करो, जिहाद तो किस्सा पारीना हो गया। अब तो ये गए दौर की बातें हो गई, वो काफिले लद गए जो जिहाद की बातें करते थे, ये तारीख में है। अब जिहाद नहीं हो सकता। वो रूस था जिसको दुनिया में फतह मिल गई, और वो भी दुनिया के हालात थे, दो कुव्वतें थी, एक ने दूसरे को मारना था, यूनिपोलराइजेशन हो गई। तुमने जिहाद करके गलती कर दी, अकेला जग्गा बना दिया अमेरिका को, पहले मुकाबले में थे तुम इस्तेमाल हो गए। अल्लाह कहता देखो, और तुम कहते थे बंदे इस्तेमाल हो गए, जिन्होंने इस्तेमाल किया वो भी इस्तेमाल हो गए। तदबीरें मेरे रब की हैं, वो सोचते रहे कि हमने इस्तेमाल किया। अल्लाह कहता हमने तो मंजर इससे आगे बनाना है, अफगानिस्तान के अंदर जो हमने ये हालात बनाए इससे आगे चलाएंगे। और अल्लाह ताला कहता फैसले को जमीन से आते हैं। आज अमरीकी बता नहीं सकते हमारे साथ हुआ क्यों, क्या हुआ, किससे मार खा के आए, क्या बताएं। क्या अमरीकियों ने बताना है? 3 साल से घीसियां कर रहे हैं, नाग रगड़ रहे हैं, मुज़ाकरात करा दो। अफगानिस्तान का नाम क्या है? अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान। लोग समझते थे पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने नाम रख दिया, और परचम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सफेद परचम के ऊपर लिखा है। और ये आज नहीं लिखा, जब अमेरिका के सामने गए थे, जब पोम्पियो आया था, दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए थे। जंग तो बहुत पहले जीती जा चुकी, जंग तो उस दिन जीत ली थी अल्लाह के मदद से, अल्लाह के फजल से। ये कहते थे 2010 में पाकिस्तान नहीं होगा। इन्होंने नक्शे बनाए और 2010 में पाकिस्तान को खत्म कर दिया। पाकिस्तान को समझने वाले लोग कहते थे 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। और रूस भी आया था पाकिस्तान के लिए, अमेरिका भी आया था पाकिस्तान के लिए, मगर ये पाकिस्तान साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है। जिसने इसको तकलीफ देनी चाहिए, जिसने इसके ऊपर कोई गलत नजर डाली, अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। ये पाकिस्तान साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है। जिसने इसका पानी बंद करना चाहा, जिसने इसका खाना बंद करना चाहा, जिसने उसके ऊपर बुरी नीयत चाही, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। और अफगानिस्तान पाकिस्तान दो नहीं है, एक है। फतह अफगानिस्तान की नहीं है, सबको पता है फतह पाकिस्तान की है। एक जंग अफगानिस्तान और अमेरिका की थी, एक जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की थी। और दोनों जंगों में इस वक्त खुश कौन है, रो कौन रहा है? मुझे इतनी खुशी हुई इस 15 अगस्त पे। पहले कश्मीर के अंदर यौम स्याह मनाया जाता था। 15 अगस्त को वो आजादी का दिन नहीं मनाते थे, यौम स्याह मनाते थे। 14 अगस्त को वो यौम आजादी मनाते थे। और इस 15 अगस्त में जो यौम स्याह श्रीनगर में था, पुलवामा में था और राजौरी, पुंछ, जम्मू में था, वो यौम स्याह कहां था? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, अमृतसर एक जैसे रो रहे थे। खुशी नहीं थी, मातम था। हम हार गए, हम भाग गए, हमें भागने को रास्ता नहीं मिलता। उनके जर्नैल रो रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी, तुम डूब गए। आज सवेरे रो रहे थे, हमारे सफारत खाने से गाड़ियां भी ले गए।
दहशत गर्दी के दरवाजे जो पाकिस्तान के लिए खुले थे अल्लाह ने बंद कर दिए। कोई एक, मैं इस जुमे में आपको क्या क्या अर्ज करूं, कितना बड़ा अल्लाह का फजल आगे हो गया, कितनी बड़ी मदद हो गई, और फातिहीन को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। जिनको मार पड़ी, रोज सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है, फौज के खिलाफ बातें करने वालों सुन लो, कहते हैं फौज तो अरबों रुपया खा जाती है, इतने फीसद बजट खा जाती है, इसका होता क्या? और तुम्हारी फौज ने क्या खाया होगा जो 48 से लेके आज तक जंग लड़ रही है? 83 अरब डॉलर खर्चा किया फौज के ऊपर। अमेरिका ने फौज पे कितना खर्च किया अफगान मिली के ऊपर? 83 अरब डॉलर। मैं इसको समझाना चाहूं, मैं बहुत कैलकुलेशन की बातें करता था, स्टैटिस्टिक की बातें करता था, अब मैं भूल गया हूं। अमेरिका की जंग में मुझे समझ नहीं आती कि खर्चा कितना हुआ है। कंगले कर दिए अल्लाह ने, बेरोजगार कर दिए अल्लाह ताला ने। बाइडन कहता था जीतने के बाद मैं अमेरिका की अजमत वापस लाऊंगा। अल्लाह कहता है इंशाअल्लाह अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए, तेरी जिल्लत तो दुनिया देखेगी, तू अजमत की बातें करता है। अमेरिका के परचम उतर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम लहरा रहे हैं। ये निजाम है, ये मुस्तकबिल है दुनिया का। जो अफगानिस्तान है पूरी दुनिया का ये मंजर बनेगा। अब अमेरिका के परचम उतर रहे हैं, नेटो के परचम उतर रहे हैं, और उतरे हुए परचमों के डंडों के ऊपर क्या लहराया जा रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया देख रही है। वो हर बात में कहते हैं हम शरीयत लाएंगे, औरतें काम करें, हम किसी को मना नहीं करेंगे, किसी एनजीओ को वापस नहीं करेंगे, कोई बैंक बंद नहीं करेंगे, किसी को कारोबार की कोई मुश्किल नहीं, सबको माफी आम है। मक्का का मंजर है। मगर शरीयत सबसे मुकद्दम होगी, हम शरीयत लेके आएंगे। वो बीबियां जो यहां मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती फिरती हैं, एंकरें वहां बुरके पहने फिरती हैं। अमरीकी औरतें बुरके पहन के रिपोर्टिंग, वो कहते हैं सब आओ, मगर जो अल्लाह का हुक्म है वो पहले होगा, बाकी बातें बाद में होगी। ये इस्लाम की फतह है, ये अल्लाह के दीन की फतह है, ये शरीयत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह है, ये मिल्लत इब्राहिम की फतह है। मुबारक हो मुसलमानों, इस्लाम जीता है। और जो हाफिज साहब आपको सालों यहां तसल्लियां देते रहे, जुमा पढ़ने वालों को कुछ समझ की आप साहब पता नहीं गल्लां कर देने, कश्मीर दी गल ते समझ आंदी, ये अमरीका वाले खैड़े सानू नहीं पहना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। मिन्नतें करके वक्त गुजारो। और आज अमेरिका को किससे तकलीफ है? लोग पूछते बाइडन पाकिस्तान में इमरान को फोन क्यों नहीं करता? वो इतनी बड़ी चोटें खा के कोई फोन नहीं किया करता। एक वक्त था, मैंने कहा मुझे वो चेहरे याद आते हैं। वो औरत होती थी, इधर ही रहती थी, हालब्रूक एक था, वो वस्त एशिया रियासतों की जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान, इसको कहते थे एफ पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान के, वो कोंडोलेजा राइस थी यहीं। और लाहौर में एक बंदा फिरता था ब्रायन डी हंट, हम उसे कहते थे ब्रायन डी बट, उर्दू बोलता था, यहां फिरता सिर्फ अमरीकियों के लिए। और इस गली में से सामने की सड़क से रहमत डेवस तस्वीरें बनाता गया इस मरकज की। और मजंग में जाके उसने एक्सीडेंट किया। ये मीडिया की बातें, मैं कोई आपको राज नहीं बता रहा। एक जंग थी, हर रोज धमाके होते थे, हर रोज खुद कुछ फटते थे। इनके पीछे पैसे किसके थे? पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, सिर्फ इस जंग को देखा नहीं है, इसको लड़ा है। बलूचिस्तान में जो जानें गईं वो पैसा अमेरिका का था। सवात में जो हालात खराब हुए, पिशावर में जो हालात खराब हुए, वजीरिस्तान में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, इसके पीछे कौन था? अमेरिका के पैसे थे, हिंदुस्तान के कौंसल खाने थे, काबुल को इस्तेमाल करते थे। और हिंदुस्तान ने लॉलीपॉप दिया हुआ था उसको, अमेरिका को, तुम चले जाना, हम अफगानिस्तान संभाल लेंगे, 1.5 लाख फौज होगी।
1.5 लाख हिंदुस्तानी फौज लड़ेगी। उसे किसी ने कहा बनिए तू कहां मरेगा, 10 लाख फौज और उंगलियों पे गिने जाते उनके सामने नहीं खड़ी हो सकी। इन मुजाहिदों के सामने जो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दे चुके, तेरा बनना क्या है? और जब अल्लाह ताला का फैसला आता है, डैम बनाए हिंदुस्तान ने, इस्तेमाल कौन करेंगे? अस्पताल काबुल में बनाए हिंदुस्तान ने, इस्तेमाल कौन करेंगे? अल्लाह ताला भी करवाता है। यह सदियों में अफगानिस्तान यहां नहीं पहुंच सकता था, मगर कुर्बानियों से पहुंचा। किधर है वो कॉलन पॉल? हम पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। वो कहता था रम्सफील्ड, दुनिया में जितने मीटर हैं उतने मिसाइल हैं, दुनिया का रकबा खत्म हो जाएगा, हमारे मिसाइल खत्म नहीं होंगे, हम इनको तोरा बोरा का सुरमा निकाल देंगे। निकाला कि नहीं? कुत्तों की तरह गारों में घुसे हैं और जिनको तलाश करना चाहते थे अल्लाह ने उनको निकाल दिया। लोग कहते थे पता नहीं ये 75,000 की गिनती कहां से आ गई, और जब ये अफगानिस्तान में पूरे थे उस वक्त 35,000 थे, 75,000 किधर है? वो तो इतने थोड़े हैं। 3 लाख फौज बनाई, 83 अरब डॉलर खर्च किया, टैंक दिए, मिसाइल दिए, एयरक्राफ्ट दिए। लोग कहते रेत की दीवार साबित हुए। कोई रेत की दीवार साबित नहीं हुए। रेत की दीवारें भी हमने देखी हैं, कुछ वक्त गुजार जाती हैं। 1 महीने में 34 सूबे फतह हुए बगैर लड़ाई के, और काबुल वो फतह नहीं करना चाहते थे। काबुल की फतह की तैयारी नहीं थी। जो एक दिन पहले कह रहा था ना हम जंग लड़ेंगे, अगली शाम उसका यह नहीं पता था वो किस मुल्क में। अब यह चक्कर है कि कितने करोड़ डॉलर लेके भागे। ये अमेरिका की फौज थी। बाइडेन कहता है जब अफगानी नहीं लड़ते हम किस तरह लड़ सकते हैं, और जब वो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके तो हम क्या करें? हमारे जिम्मे नहीं है, हमने उनको पैसे दिए। और दुनिया कह रही, और जो असला अफगानिस्तान में अपनी फौज को दे के गए थे, आज वो गनीमतें आप देख रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला कहता है वऔरसकुम अर्दहुम वदियारहुम वअरज़ल्लम ततऊहा, उनकी जमीनों का मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा, उनके घरों का मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा, और जो जमीनें तुमने देखी नहीं मैं तुम्हें वो भी दूंगा। आगे बढ़ो। वो बैठा वहां पढ़ रहा इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ गई और फतह आ गई, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें इस्लाम में दाखिल हो गई। तुमने देखा नहीं? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की बड़ाई बयान कर, हम्द बयान कर, उसकी पाकीज़गी बयान कर, इस्तिग़फार कर। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो तो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है, बड़ा ही बख्शने वाला है। उसके सामने गिर, हमने तुम्हें फतह दी। अम्मा जी आशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर इसके बाद मैंने सजदों में देखा कसरत से एक ही बात कहते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। जब यह सूरत आ गई तो यही पढ़ते थे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू बेऐब है, तू पाक है, सारी हम्द तेरे लिए, सारी तारीफ तेरे लिए, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे। सजदों में, रुकुओं में कसरत से ये दुआ करते थे। मुसलमानों, हमें भी आज अल्लाह की हम्द बयान करनी है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करनी है। अल्लाह के सामने गिरना है, अतराना नहीं है, अतराना नहीं है। यह सब अल्लाह की तरफ से हुआ। किस तरह हुआ मुझे नहीं समझ आती है। कोई एक मंजर मेरे सामने चल रहा है। कंधार के अकूबत खानों में से जब यह जंग शुरू हुई, गिरफ्तार करके लाया जाता था, और कंधार की मस्जिद से आगे थोड़ा सा एक नाला है, 4-5 किलोमीटर आगे जाएं तो एक गांव में एक घर था। उस नाले के किनारे पे कहने वाले कहते थे ये मुल्ला उमर का घर है। कच्चा घर था, 2 कमरों का, और उसका बेटा जख्मी था, रात बमबारी हुई थी, और उसको अपने बेटे के इलाज की जगह कोई नहीं मिलती थी।
40 साल खैमों में गुजारे, 40 कहूं कि 42 कहूं, 80 से लेके आज तक खैमों में गुजारे, कच्चे घरों में गुजारे, कपड़े के टाट के खैमों में गुजारे, चटाइयों पे सोए, 40 साल 3 नस्लें। ये फतह यूं नहीं हुई, इसमें बड़ा खून बहा। जब मुझे किला जंगी की बातें याद आती हैं, दश्ते लैला के सहरा याद आते हैं, शाही कोट की चीरें याद आती हैं, जब बदख्शां और शिबरगान के वाकयात याद आते हैं, जब खोस्त और जलालाबाद में जो कुछ हुआ था भूले नहीं है। कंटेनरों में बंद थे लोग, उनके मुहासरे हुए, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कहने लगे हम तुम्हें छोड़ के आते हैं, फिर उनको लोहे के कंटेनरों में बंद किया गया, फिर वो कंटेनर धूप में खड़े किए गए, वो झुलस रहे थे, फिर कंटेनर चल रहे थे, उन पे गोलियां बरस रही थीं। वो कहने लगा 200 में से हम 16 जिंदा बचे थे, बाकी सारे के सारे शहीद हो गए। वो कंटेनरों के शहीद किसी को भूलेंगे? एक बंद कमरा होता था, एक मुजाहिद था और एक खूनखार कुत्ता होता था, इसलिए छोड़ा जाता था इसको भंबोड़े। वो तो फिर अल्लाह ने मंजर दिखा दिए, वो तो अल्लाह ने मंजर दिखा दिए कि वो कुत्ते को करीब लाते हैं और कुत्ता भाग जाता है कि मैंने इसको काटना नहीं। ये वीडियोस आज भी पड़ी हैं। फिर गुंटानामो के जजीरे आबाद किए गए, फिर गुंटानामो में जेल बनाई गई कि अमेरिका में रखेंगे तो शायद कोई कानून इनको राय दे दे, हम वहां लेके जाएंगे जहां इंसानी हकूक ना पहुंचे, जहां कोई वकील ना पहुंचे, ना कोई जज पहुंचे, इन पे कोई मुकदमा नहीं होगा, इनकी सजा की कोई लिमिट नहीं होगी, इनको जेलों में नहीं रखेंगे, जानवरों से बदतर पिंजरों में इनको डालेंगे, दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देंगे। गुंटानामो वाले जीत गए, बनाने वाले हार गए। कंधार में ये बगराम खाली करके गए, बगराम की दीवारों पे आज भी हमारे लहू के छींटे मौजूद हैं, वो चीखें आज भी उन बिल्डिंगों को याद हैं। अजियतें देने वाले, टॉर्चर करने वाले थक जाते थे, मार कर खाने वाले नहीं थके और अपने अज़्म से पीछे नहीं हटे। वो कल के कैदी आज के फाते हैं। मुसलमानों, हमने भी नहीं घबराना, ये कैदो बंद कभी मुश्किल नहीं आती। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल सीधी तख्त को जाती है। ये कैद वाले थे जिनको अल्लाह ने फतह दी। ये कहने लगा कोई एक मंजर है, 40 साल जिस तरह गुजरे हैं, जख्मियों के जो हालात थे, कीड़े पड़े थे और मट्टी से लेप करते थे, दुनिया का कोई अस्पताल उनका इलाज नहीं करता था, दुनिया में उनका शनाख्ती कार्ड नहीं था। एक मुल्क पाकिस्तान था जिसने उनको भाई होने का दर्जा दिया। हमारे बड़े लोग पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, और आप कहते हैं और जो फाते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर क्यों नहीं करते? और जिनको आप कहते हैं कि उनको पाकिस्तान से तकलीफ हुई, आप कहते हैं वो क्यों नहीं कहते जो जिनको कहना चाहिए? उनको पता है कोई तकलीफ नहीं थी, दिखाया कुछ जा रहा था, हो कुछ और रहा था। और दोहा के मुदाकरात में जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम लहराए गए, मैं आपको थोड़ी सी एक बात सुनाऊं। बदर की फतह थी, मंजर अल्लाह ने बिल्कुल वो बना दिया। मक्का में जब आदमी बदर की फतह के लिए पहुंचा ना, बताने के लिए हम हार गए। आज बाइडेन की तकरीरें वो हैं, सुनता कोई नहीं उसकी। यूरोप में नारे लग रहे हैं 2500 यूरोप का फौजी मरवा दिया, किस लिए? ओ बाइडेन से लोग पूछते हैं, अमेरिका के 4 सदरों से पूछते हैं, बुश से, ओबामा से, ट्रंप से, बाइडेन से, 4 सदरों से, 12 जर्नैलों से, 20 सालों से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, कहते हैं 4 ट्रिलियन डॉलर। मुझे तो इसका हिसाब ही नहीं आता ये पैसे कितने बनते हैं, 40 खरब डॉलर। ओ पता नहीं भाई ये कितना पैसा खर्च कर गए। कहते हैं हमने 20 साल लगाए तालिबान से हुकूमत लेके तालिबान को वापस करने में। क्या पॉलिसी थी? तालिबान से हुकूमत लेके वापस किसको की है? ये अमेरिका की फतह है कि
तालिबान से हुकूमत छीनी और वापस उसको कहते हैं इस पे पैसे लगे, इस पे हुकूमतें लगी, इस पे जाने की, जिनसे ली थी उन्हीं को वापस की है, पहले से ज्यादा इज्जत के साथ। ये अमेरिका की फतह है। खप गए, मर गए, कख इनके पल्ले नहीं। तो मक्का में आदमी पहुंचा, कहता है अबुल हकम बिन हशाम, अबू जहल मारा गया, उतबा, शैबा, मुगीरा, वलीद मारे गए, उमैया बिन खल्फ मारा गया। तो सफवान बिन उमैया नई जंग में गया था, अबू लहब भी। उसने कहा इससे पूछो हतीम में बैठे, ये मुझे पहचानता? कहा मैं जानता हूं, तुम मुझे समझते हो पागल, वाकई मारे गए, ये सफवान है। कहने लगा जिन लोगों से हमारी जंग हुई हमने अपने कंधे उनको दे दिए, यानी उन्होंने हमें मार ही दिया। कहता मैं अपने लड़ने वालों पे मलामत नहीं करता, हम भी लड़ने वाले थे, मगर करते क्या, जमीन और आसमान के दरमियान चिट्टे गोरे कोई लोग आए थे, चितकबरे घोड़ों पे सवार थे, वो जिसको चाहते थे मारते थे, जिसको चाहते थे कैद करते थे। मैं उन लोगों को नहीं जानता, ये जमीन वालों को तो हम लड़ लेते। कहता मुझे अपनी कौम से मलामत नहीं है, मसला कुछ और बना था। जमीन और आसमान के खला में कुछ सफेद चेहरों वाले लोग थे, चितकबरे घोड़ों पे सवार थे, जिसको चाहते थे कैद कर देते थे, जिसको चाहते थे मार देते थे। अबू राफे कहते हैं मैं भी मुसलमान हो चुका था, अब्बास भी मुसलमान हो चुके थे, उम्मुल फजल भी मुसलमान हो चुकी थी, मगर हमने अपना इस्लाम छुपाया था। मैंने खैमे की ओर से कपड़ा उठाया, मैंने कहा वो फरिश्ते थे। अबू लहब को गुस्सा चढ़ा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं लड़ पड़ा, वो मेरे सीने पे चढ़ा और मुझे मारने लगा। उम्मुल फजल ने, वल्लाह मुसलमानों की औरतें थी, खैमे का खूंटा उखाड़ा, उसके सर पे मारा। कहते 7वें दिन अबू लहब मर गया, ताउन उसको हुआ, उसके बेटे उसको दफन नहीं करते थे। और आज का मीडिया, ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, कोई बंदा खबर नहीं देगा अफगानिस्तान के हालात की, कोई बोलेगा नहीं। मक्के में ऐलान हो गया, कोई नोहा नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं, अपनी शिकस्त का ऐलान नहीं करेगा। असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा, 3 बेटे मारे गए। कितने बेटे बदर में? 3 बेटे। सीना जल रहा था गम के साथ, रोने की इजाजत नहीं है। और मुसलमानों मुबारक हो, आज आपने कुफर को यहां पहुंचा दिया कि रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, अपने जख्म दिखा भी नहीं सकते। बिल्कुल बदर के मंजर हैं, रोने पे पाबंदी है। मक्के के अंदर कोई रो नहीं सकता। कहीं से किसी के रोने की आवाज आई, औरत रो रही है, गुलाम से कहा भाग के जा, मेरा दिल फटा जाता है गम का। नोहे की इजाजत मिल गई, कोई औरत रोने लगी है, बता तो सही हुआ क्या। वो गुलाम वापस आया, कहने लगी उसका ऊंट गुम हो गया है, वो ऊंट के फराक में रोती है, वो ऊंट की जुदाई में रोती है, अभी बदर पे मरने वालों के रोने की इजाजत नहीं। शेर पढ़ने लगा, कहता वाह औरत, तुझे बेखाबी मिली, तेरी नींद हराम हो गई एक ऊंट के पीछे। हमें तो पता कि कोई बदर में हमारा सरदार बचा ही नहीं, आज हमने उनको सरदार बना लिया जो कभी सरदार बनते नहीं थे। हमारे शेर चले गए, हमारे जवान बेटे सब चले गए, हमारे ऊपर इतनी शर्मिंदगी और मायूसी है, हमारे ऊपर, हमारा तो नसीब फूट गया बदर में। यह शेर पढ़ रहा है असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, कहता तुम ऊंटों पे रोते हो, हमारे बेटे मर गए, हम बेटों पे रो नहीं सकते। कहता बाइडन बाप मरा, बेटा मरा, अब तीसरी नस्ल नहीं मरवा सकता, आ जाओ। ट्रंप ने कहा था 20 साल और लड़ेंगे, अगले ने कहा 20 साल लड़ना है और घड़ियां तुम्हारे पास हैं, वक्त हमारे पास है, मुकाबला करो, वक्त का हिसाब तुमने करना है, जंग हमारी होगी, घड़ी तुम्हारे पास है, वक्त हमारे पास है, आओ 100 साल लड़ेंगे। तो तुम 1 लाख मुजाहिद शहीद कर, 50 तुम अपने अमरीकी मरवाना, हम 1 लाख मुजाहिदों की शहादत के लिए तैयार हैं, आओ मैदान लगाते। कहता अभी तो हमने जंग सीखी है, शुरू तो अब करेंगे। क्या जुमला बोल गया, कहता घड़ियां तुम्हारे पास हैं, वक्त हमारे पास है, आओ मुकाबला करें।
روتے پھرتے ہیں ہمیں مارا بہت ہے، ہمارا اسلحہ لوٹ گئے، ہم امریکہ کے ریزرو بینک میں سے ان کو پیسے نہیں دیں گے، وہ تم سے مانگتے بھی نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملے ان کو کون؟ مدینے میں بدر، یہاں بھی پسو پڑے، کوئی ہندوستان کو پڑھے، کوئی یہاں کے ہمارے لبرل، عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہ ظالموں، جن عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، جو عورتیں بگرام کی جیل میں مردوں کے ساتھ ننگی قید رہیں، اور جن عورتوں کو در بدر کر دیا، تمہیں ان پہ کبھی ترس نہیں آیا؟ آج ان سب کو زیادہ حقوق کس کے اٹھے ہوئے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں کہ کسی طرح خانہ جنگی شروع ہو جائے، کہیں قتل شروع ہو جائے۔ افغانستان میں فتح ہو گئی، کوئی بندہ نہیں مر رہا، کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں جو کرنا ہے، کل عاشورہ تھا، 10 محرم تھا، ساری سیکورٹی کی انہوں نے۔ پرسوں 4-5 نکل آئیں طالبان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، انہوں نے حصار بنا کے سیکورٹی کر دی، جو احتجاج کرنا کرو، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، ہمارے خلاف احتجاج ہے، سیکورٹی ہم دیں گے۔ عبداللہ کے گھر کے پہرے دار حامد کرزئی کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں، واللہ بڑے سینے والے لوگ ہیں، بڑے حوصلے والے لوگ ہیں۔ 8 لاکھ لوگوں کی قتل کے جو ذمہ دار ہیں، آج ان کے گھروں کے پہرے دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کو جگ ہسائی کا موقع نہیں دیں گے۔ دنیا یہ نہیں کہہ سکے گی کہ امریکہ کی شکست کے بعد آپس میں لڑ پڑے۔ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ محل مل گئے، محلوں میں نہیں رہ رہے، اپنے کچے گھروں میں رہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے۔ 20 سال کے بعد وہ کیمرے کے سامنے آیا، 340 چینل لائیو چل رہے تھے، بائیڈن کو سنتا کوئی نہ تھا، ذبیح اللہ کو 340 چینل لائیو چلا رہے تھے۔ انگریزی نہیں آئے گی، ترقی کس طرح کریں گے؟ اگلے نے پشتوں میں ساری تقریر کر دی ہے۔ اگر انگریزی لباس نہیں پہنے گے، دنیا قبول کس طرح کرے گی؟ اس نے پکڑ باندھ کے تقریر کی ہے ساری۔ غلامیوں کا کوئی علاج نہیں ہے، انہوں نے غلامیاں توڑ دی ہیں۔ مدینے میں منافقین کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں، بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، او مسلمانوں تمہارا کھاتا ختم ہو گیا، اب بدر ہو گئی، اب چھوڑا ہوگا ابو جہل نے، شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے 2 بندے بھیجے، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قصبہ ان کو دی اپنی اونٹنی، دور سے اونٹنی دیکھ کے منافقین کہتے ہیں پہچان لیا، یہ بھاگ کے آگے، یہ اونٹنی خالی آئی ہے، یہ بیٹھے، اللہ کے نبی تو رہے ہی نہیں دنیا میں۔ ان کو امید نہیں تھا مسلمان جیتیں گے، اور کافروں کو یہ یقین تھا کہ ہم جیتیں گے۔ وہاں کا منظر میں نے آپ کو پڑھ دیا، رحیق المختوم کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ اور یہاں مدینے کا منظر، جب انہوں نے آ کے پریس کانفرنس شروع کی نا، پھر مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا، اللہ کی حمد سے گونج رہا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ گونج دنیا میں پہنچے گی اللہ اکبر کی، یہ فتح آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں، بس ہمیں اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی شریعت پہ قائم رہنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، مدد بھی آئے گی، فتح بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔